آج ہم بات کر رہے ہیں اس عظیم لیڈر کی جس نے یہ کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مجھے مارنے جا رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے یا نہیں، وہ مجھے اس قتل کے لیے قتل کرنے جا رہے ہیں جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں۔ یہ اپنے وقت کے عظیم لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کے الفاظ تھے۔ My country hearkens for me. We will fight. We'll go back and fight. I'm going. یہ وہ لیڈر تھا جو سلامتی کونسل میں اقوام متحدہ کی اپنی یادگار تقریر میں جب ہندوستان اور پاکستان جنگ لڑ رہے تھے، احتجاج میں کاغذ پھاڑ کر واک آؤٹ کر کے باہر نکل آیا۔ We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. ذوالفقار علی بھٹو رتو ڈیرو سندھ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک مدبر سیاستدان تھے۔ وہ پاکستان کے چوتھے صدر رہے اور بعد میں 1973 سے 1977 تک پاکستان کے نویں وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دیں۔ بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور قتل کے جرم میں پھانسی تک اس پارٹی کے چیئرمین رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صدر اسکندر علی مرزا کے دور میں کابینہ کے رکن تھے۔ 1958 سے صدر ایوب خان کے فوجی دور میں مختلف وزارتوں پر فائز رہے۔ بھٹو 1963 میں وزیر خارجہ بنے۔ کشمیر میں آپریشن جبرالٹر کی وکالت کی جس کے نتیجے میں بھارت کے ساتھ 1965 کی جنگ ہوئی۔ تاشکند ڈکلریشن 10 جنوری 1966 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان 1965 کی پاک بھارت جنگ کے خاتمے کے لیے امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت سے برطرف کر دیا۔ برطرف ہونے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی قائم کی اور انتخابات میں حصہ لیا۔ عوامی لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار کی منتقلی پر متفق نہ ہو سکے جس کی وجہ سے شہری بدامنی اور بنگلہ دیش کی تخلیق ہوئی۔ بھٹو نے دسمبر 1971 میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے صدارت کا عہدہ سنبھالا۔ اپنی صدارت کے دوران ذوالفقار علی بھٹو نے 93,000 جنگی قیدیوں کی رہائی حاصل کی اور شملہ معاہدے کے ذریعے 5,000 مربع میل تقریباً 13,000 کلومیٹر ہندوستان کے زیر قبضہ علاقے پر دوبارہ دعویٰ کیا۔ When then Indian Prime Minister Indira Gandhi and Pakistani President Zulfikar Ali Bhutto signed the Shimla Agreement. بھٹو کی حکومت نے 1973 میں پاکستان کے موجودہ آئین کا مسودہ تیار کیا۔ انہوں نے ملک کے ایٹمی پروگرام کو شروع کرنے میں بھی اپنا اہم کردار ادا کیا۔ 1977 کے پارلیمانی انتخابات جیتنے کے باوجود بھٹو کو بڑے پیمانے پر ووٹوں میں دھاندلی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا جس سے ملک بھر میں ہنگامہ آرائی ہوئی۔ 5 جولائی 1977 کو فوجی سربراہ ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک فوجی بغاوت میں معزول کر دیا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں۔ ان کی پارٹی پاکستان میں ایک اہم سیاسی قوت بنی ہوئی ہے۔ ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دے چکی ہیں۔ ان کے داماد آصف علی زرداری بھی صدر پاکستان بنے ہوئے ہیں اور اب ان کے نواسے بلاول بھٹو بطور چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایوب خان کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ملک کے مختلف حصوں میں بڑے احتجاج اور ہڑتالیں کی جس سے ایوب خان پر مستعفی ہونے کے لیے دباؤ 12 نومبر 1968 کو بڑھ گیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا۔ اصغر خان جو ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھی تھے، انہوں نے بھٹو کی رہائی کے لیے احتجاج کی قیادت کی جو بالآخر بھٹو کی آزادی کا باعث بنی۔ اپنی رہائی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کے ساتھ راولپنڈی میں ایوب خان کی طرف سے بلائی گئی گول میز کانفرنس میں شرکت کی، لیکن علاقائی خود مختاری کے لیے شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکاتی تحریک کو
قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایوب خان کے مستعفی ہونے کے بعد ان کے جانشین جنرل یحییٰ خان نے 7 دسمبر 1970 کو پارلیمانی انتخابات کرانے کا وعدہ کیا۔ بھٹو کی قیادت میں ان کی پارٹی نے مغربی پاکستان کے حلقوں سے بڑی تعداد میں نشستیں حاصل کی، تاہم شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے ایبسلیوٹ میجورٹی حاصل کی۔ بھٹو کی پیپلز پارٹی کے مقابلے میں 2 گنا سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عوامی لیگ کی حکومت کو قبول کرنے سے سختی سے انکار کر دیا۔ 17 جنوری 1971 کو صدر یحییٰ نے ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی اور مبینہ طور پر عوامی لیگ اور اس کے حامیوں کو کچلنے کا فیصلہ کیا۔ شیخ مجیب الرحمان نے بنگالیوں کو بنگلہ دیش کی جدوجہد میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ تاریخی حوالوں اور معروف پاکستانی اخبار دی نیشن کے شائع کردہ ایک رپورٹ کے مطابق مجیب الرحمان کو اب پاکستان پر یقین نہیں رہا اور وہ بنگلہ دیش بنانے کے لیے پرعزم تھے۔ یحییٰ خان کے دور حکومت میں بنگلہ دیش کی ریاست نے جنم لیا۔ بھٹو نے پاکستان کے اتحاد کی حفاظت میں ناکامی پر یحییٰ خان کی مذمت کی۔ الگ تھلگ یحییٰ خان نے 20 دسمبر 1971 کو استعفیٰ دے دیا اور اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کو منتقل کر دیا۔ اور بھٹو صدر، کمانڈر ان چیف اور پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے۔ بھٹو نے 14 اپریل کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا اور قومی اسمبلی نے 1973 کے لیے آئین کی منظوری دی، جس پر ذوالفقار علی بھٹو نے 12 اپریل کو دستخط کیے تھے۔ انہوں نے آئین پاکستان میں پارلیمانی طرز حکومت کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی جمہوریہ کا اعلان کیا۔ 10 اگست کو ذوالفقار علی بھٹو نے صدر کا عہدہ فضل الہی چودھری کے حوالے کر دیا اور اس کے بجائے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے وزیر اعظم اندرا گاندھی سے ملاقات کے لیے ہندوستان کا دورہ کیا اور ایک باضابطہ امن معاہدے اور 93,000 کے قریب پاکستانی جنگی قیدیوں کی رہائی پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے شملہ معاہدے پر دستخط کیے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے ایٹم بم پروگرام کے بانی تھے۔ انہوں نے اس پروگرام کی انتظامیہ اور جارحانہ قیادت کی وجہ سے فادر آف نیوکلیئر ڈیٹرنس کا خطاب حاصل کیا۔ 1965 کی جنگ کے فوراً بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ اگر ہمیں گھاس بھی کھانا پڑے تو ہم کھائیں گے، لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے۔ وزیر اعظم کے طور پر ان کے دور میں کئی زمینی، زرعی، صنعتی شعبے کے علاوہ لیبر پالیسی، سوشل سیکیورٹی اور بہت سی اصطلاحات متعارف کرائی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی مدت کے دوران بڑھتی ہوئی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی طور پر اپوزیشن لیڈر عبدالولی خان اور ان کی نیشنل عوامی پارٹی کو نشانہ بناتے ہوئے، جو ایک جمہوری سوشلسٹ پارٹی تھی، بھٹو کی قیادت میں سوشلسٹ اور کمیونسٹ عوام بکھرنے لگی۔ 1974 اور 1976 کے درمیان بھٹو کے بہت سے اصل ارکان سیاسی اختلافات یا فطری وجوہات کی بنا پر چھوڑ کر چلے گئے۔ پیپلز پارٹی کے اندر اختلافات بڑھتا گیا اور منحرف رہنما احمد رضا قصوری کے والد کے قتل نے عوامی غم و غصہ اور پارٹی کے درمیان دشمنی کو جنم دیا۔ بھٹو کو اس جرم کی ماسٹر مائنڈنگ کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ پیپلز پارٹی کے ممتاز رہنما باشمول سابق گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر نے بھٹو کی کھل کر مذمت کی اور ان کی حکومت کے خلاف احتجاج پر زور دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر کے آئین معطل کر دیا، تمام اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور ضیاء نے پیپلز پارٹی اور نیشنل عوامی پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی گرفتاری کا حکم دیا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی گرفتاری کے بعد اپنی اہلیہ نصرت بھٹو کو پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر مقرر کیا، تاہم بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا۔ 3 ستمبر 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ صرف ایک ہفتہ بعد جسٹس کے ایم اے سمدانی نے ذوالفقار علی بھٹو کی ضمانت دے دی۔
भुट्टो की आज़ादी ज़्यादा देर न चल सकी। 15 दिन में ज़ियाउल हक ने भुट्टो को मार्शल लॉ के ज़वाबित के तहत गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। किसी भी मौकूल मियार के बाद जो ट्रायल हुआ वो इंसाफ की धोखाधड़ी और मुनसिफाना ट्रायल की जमानतों का मजाक उड़ाने वाला था। इस मुकदमे की तफ्तीश एक मजिस्ट्रेट के हुक्म पर अक्टूबर 1976 में बंद कर दी गई। मार्शल लॉ लगने के बाद ही तहकीकात दोबारा शुरू हुई। हुक्म में तब्दीली के लिए मजिस्ट्रेट को कोई दरखास्त नहीं दी गई और मौसर तरीके से तफ्तीश को दोबारा खोल दिया गया, जबकि उसे बंद करने का अदालती हुक्म अभी तक मौजूद है। इसके बाद स्टेट ने मुकदमे की समाअत सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में मुंतकिल करने के लिए दरखास्त दायर की। चौंका देने वाली बात यह है कि भुट्टो को बगैर किसी नोटिस के लाहौर हाई कोर्ट ने मुंतकली की दरखास्त की इजाजत दे दी। इसका फौरी और गैर मुनसिफाना नतीजा ये हुआ कि भुट्टो को अपील के हक से भी महरूम कर दिया गया। जुल्फकार अली भुट्टो के ट्रायल के वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन थे। जो भुट्टो के दौर में मौलवी मुश्ताक हुसैन के बारे में कहा जाता था कि जुल्फकार अली भुट्टो ने उन्हें साइडलाइन कर दिया और एक जज ने कई साल उनके जूनियर को आला तरीन जज बना दिया। हामिद खान लिखते हैं कि मौलवी मुश्ताक हुसैन भूलने वाले नहीं थे कि भुट्टो ने जिस तरह उनकी तौहीन की थी। जब इस मुकदमे की समाअत के लिए बेंच तश्कील दी गई तो जस्टिस के.एम. समदानी, जो पहले भुट्टो को जमानत दे चुके थे, उनको बेंच से निकाल दिया गया। बरसों बाद सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो की अपील की समाअत करने वाले जजेस में से जस्टिस नसीम हसन शाह ने तस्लीम किया कि मौलवी मुश्ताक हुसैन ने भुट्टो से दुश्मनी रखी और बेहतर होता कि वो बेंच का हिस्सा ना होते। इसके बावजूद जस्टिस नसीम हसन शाह ने जस्टिस मुश्ताक की जानिबदारी का इल्जाम लगाने वाले भुट्टो की मायूसाना दरखास्तों को कोई वजन नहीं दिया। जजेस से गैर जानिबदारी और आज़ादी की तवक्को की जाती है, ताहम जुल्फकार अली भुट्टो ने उन जजेस का सामना किया जिन्होंने उनके खिलाफ दुश्मनी रखी। जजेस को कानून की बुनियाद पर फैसले करने चाहिए, फिर भी भुट्टो की सजाए मौत पर अपील में बैठे जजों ने बैरूनी मामलात पर गौर करने का एतराफ किया जिनका कानून से कोई ताल्लुक नहीं था। अपील का हक मुनसिफाना ट्रायल का एक बुनियादी पहलू है, फिर भी भुट्टो को अपील के हक से इनकार कर दिया क्योंकि मुकदमा उनको बगैर किसी नोटिस के लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया था। जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ असल मुकदमा क्या था? 10 और 11 नवंबर 1974 की दरमियानी शब तकरीबन 12:30 बजे लाहौर में शादमान शाह जमाल चक्कर के करीब वाकया पेश आया, जब अहमद रजा कसूरी शादी में शिरकत के बाद मॉडल टाउन में कार पर अपने घर वापस जा रहे थे तो उनके साथ उनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान भी साथ मौजूद थे। शादी की जगह से तकरीबन 100 गज से भी कम फासले पर उनकी गाड़ी पर हथियारों से फायरिंग की गई और उनके वालिद को निशाना बनाया गया। अहमद रजा कसूरी ने अपने जख्मी वालिद को यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल ले गए, जहां 2:55 पर उनके वालिद जख्मों की ताप ना लाते हुए चल बसे। वाक़े की इतला मिलते ही लाहौर के डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद असगर खान और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सरदार मोहम्मद अब्दुल वकील खान हॉस्पिटल पहुंचे। उनकी तजवीज़ पर अहमद रजा कसूरी की तरफ से सुबह 3:20 पर तहरीरी तौर पर एक बयान लिया गया, जिसकी बुनियाद पर SHO की तरफ से थाना अशरा लाहौर में बाज़ाब्ता FIR दर्ज की गई। इस FIR में अहमद रजा कसूरी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग सियासी वजूहात की बिना पर की गई क्योंकि वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अपोजिशन के रुकन थे। अहमद रजा कसूरी तहरीक इस्तक़लाल पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे पर भी फाइज थे, जो हुकूमत पर कड़ी तनकीद किया करते थे। उन्होंने मजीद कहा कि 1973 में अहमद रजा कसूरी ने PP छोड़कर सियासी जमात तहरीक इस्तक़लाल में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो पर उनकी तनकीद ज़्यादा शदीद और पुरतशद्दुद हो गई। 3 जून 1974 को कौमी असम्बली में अहमद रजा कसूरी और जुल्फकार अली भुट्टो के दरमियान खासा नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसके दौरान साबिक वज़ीर आज़म ने अहमद रजा कसूरी को
चुप रहने को कहा। जुल्फकार अली भुट्टो ने कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए कहा था कि वो उनसे तंग आ चुके हैं और उनको मजीद बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं रहा। अहमद रजा कसूरी ने कहा कि ये अल्फाज कौमी असम्बली के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। वाक़े के वक्त जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम के ओहदे पर फाइज थे और उन्होंने उनके वालिद का कत्ल करवाया है। इब्तदाई मराइल में तफ्तीश की निगरानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अब्दुल अहद ने की। उसके बाद केस की जिम्मेदारी मलिक मोहम्मद वारिस को सौंपी गई, लेकिन तफ्तीश ज्यादा आगे न बढ़ सकी। ताहम 5 जुलाई को मार्शल के नफाज के बाद केस दोबारा खोल दिया गया। मरकजी हुकूमत ने 1977 में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA को हिदायत की कि वो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स और उसके अफसरान के काम काज की इंक्वायरी करे, खास तौर पर मुख्तलिफ सियासी कत्ल से मुतालिक एक वाक़े की तहकीकात करते हुए वफाक के तहकीकी इदारे के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल खालिक ने शुबा जाहिर किया कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के वाक़े में मुलव्वस हो सकती है। उस वाक़े के वक्त फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के मेंबरान में मियां मोहम्मद अब्बास डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड इंटेलिजेंस, उस फोर्स में गुलाम मुस्तफ़ा इंस्पेक्टर, अरशद इकबाल सब इंस्पेक्टर और राना इफ्तिखार अहमद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात थे। 26 जुलाई 1977 को उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 164 के तहत उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए। गुलाम मुस्तफ़ा और मियां मोहम्मद अब्बास के साथ साथ मसूद महमूद और गुलाम हुसैन को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने भी ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 164 के तहत एतराफ़ी बयानात दिए, जो बिलाखिर साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो की गिरफ्तारी पर मुंतज हुए। फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल मसूद महमूद और गुलाम हुसैन नामी एक और इंस्पेक्टर भी मुल्ज़मान की फहरिस्त में शामिल थे, ताहम बाद में उन्हें माफ़ी दे दी गई और वो मुकदमे में बतौर मंजूर नज़र अप्रूवर उन्होंने गवाही दी। इस्तगासा की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मसूद महमूद के साथ मिलकर एक साजिश की, जो उस वक्त फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल थे, कि अहमद रजा कसूरी को उसके जरिए ख़त्म कराया जाए। मियां मोहम्मद अब्बास ने इस डिज़ाइन को अमली जामा पहनाने के लिए फेडरल सिक्योरिटी फोर्स की आर्मरी से असला और गोला बारूद की फराहमी का इंतज़ाम किया और गुलाम मुस्तफ़ा को हिदायत की कि वो गुलाम हुसैन की हर तरह से मदद करे। उनकी हिदायत के मुताबिक बिलाखिर 10 और 11 नवंबर 1974 की दरमियानी शब अहमद रजा कसूरी की गाड़ी पर हमला किया गया। इस्तगासा के मुताबिक असल फायरिंग राना इफ्तिखार और अरशद इकबाल ने की, जो मुसल्लह थे। गुलाम हुसैन मौके पर मौजूद रहे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तफवीज़ करदा मिशन पूरा किया जा सके। 11 सितंबर 1977 को लाहौर के एक मजिस्ट्रेट के सामने एक नामुकम्मल चालान जमा कराया गया और 13 सितंबर 1977 को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई, जिसमें कहा गया कि केस के ट्रायल के लिए लाहौर हाई कोर्ट को मुंतकिल कर दिया जाए। ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 173 के तहत हतमी रिपोर्ट 18 सितंबर 1977 को हाई कोर्ट में पेश की गई, जहां मुकदमे की समाअत 11 अक्टूबर 1977 को शुरू हुई और 2 मार्च 1978 को इख्तिताम पजीर हुई। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने इस बुनियाद पर बेंच पर अपने एतमाद का इजहार किया कि प्रिजाइडिंग जज यानी हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक उनके खिलाफ मुतसबाना रवैया रखते थे, क्योंकि उनकी हुकूमत ने उन्हें ओहदे पर तरक्की देने के मामले में बार बार इग्नोर किया। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने केस को किसी और बेंच या अदालत में मुंतकिल करने के लिए हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ दरख्वास्तें ली और बिलाखिर 9 जनवरी 1978 को अपने तमाम वकीलों के पावर ऑफ अटॉर्नी को मंसूख कर दिया और 10 जनवरी 1978 से मुकदमे की कार्रवाई का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया। इस्तगासा ने बड़ी तादाद में दस्तावेजात के अलावा 41 गवाह पेश किए। लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस पर मुश्तमिल फुल बेंच का फैसला 18 मार्च 1978 को सुनाया गया और जुल्फ़कार अली भुट्टो को कत्ल का मुजरिम करार देकर
मौत की सजा सुनाई। जुल्फकार अली भुट्टो के साबिक कानूनी वजीर अब्दुल हफीज पीरजादा ने सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार अली भुट्टो की सजाए मौत पर नजरसानी की दरखास्त पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल सुनने पर रजामंदी जाहिर की। 12 दिन की कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह नतीजा अखज किया कि सदर पाकिस्तान सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर सकते हैं। पीरजादा ने उस वक्त के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को दरखास्त दायर की, ताहम जनरल जियाउल हक ने फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं की और दावा किया कि उनकी दरखास्त गायब हो चुकी है। जुल्फकार अली भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की पैरवी ना करने का इंतखाब किया। जब उसे रावलपिंडी सेंट्रल जेल की एक सेल में मुंतकिल किया गया तो उनके अहले खाना ने उनकी जानिब से अपील की। सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और भुट्टो को तैयारी के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। चीफ जस्टिस इनवारुल हक की जियाउल हक से करीबी ताल्लुकात के बावजूद मुकदमे की सदारत की। 18 दिसंबर 1978 को भुट्टो रावलपिंडी में एक पुरहजूम कमरा अदालत के सामने अवामी तौर पर पेश हुए। जुल्फकार अली भुट्टो ने 4 दिन तक अदालत में आर्गूमेंट्स किए। जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने आर्गूमेंट्स में कहा कि मैंने उस आदमी को नहीं मारा, मेरा खुदा इससे वाकिफ है। मैं ये तस्लीम करने के लिए काफी बड़ा हूं कि अगर मैं ये कर लेता तो ये इतराफ इस वहशियाना आजमाइश और इस जिल्लत से कम होता जिसे कोई भी इज्जतदार आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक मुसलमान हूँ, मुसलमान की तकदीर अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं साफ ज़मीर के साथ इसका सामना कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि मैंने इसकी इस्लामी रियासत पाकिस्तान को राख से दोबारा एक काबिल एहतराम कौम में तब्दील किया। मैं कोट लखपत के उस ब्लैक होल में अपने ज़मीर के साथ पूरी तरह सुकून से हूँ। मैं मौत से नहीं डरता। तुमने देखा है कि मैं किन आगों से गुजरा हूँ। अपील की समाअत 23 दिसंबर 1978 को ख़त्म हुई। 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो को कसूरवार ठहराया। 24 मार्च 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और जियाउल हक ने सजाए मौत को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस में से 2 इस फैसले से गैर हाजिर थे जो भुट्टो के हक में थे। दोनों ने इस बात की अलामत जाहिर की कि उन्हें शिरकत ना करने पर मजबूर किया गया था। अगर वो 2 जजेस मौजूद होते और उनके फैसले में वो कसूरवार ना पाए जाते तो वो भुट्टो आज़ाद हो जाते। जस्टिस दौराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम, जस्टिस सफदर शाह, इन जजेस का मौक़िफ़ था कि जुल्फकार अली भुट्टो और मियां मोहम्मद अब्बास को फौरी बरी करके आज़ाद कर दिया जाए। जबकि उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवारुल हक, जस्टिस मोहम्मद अकरम, जस्टिस करम अल्लाही चौहान और जस्टिस नसीम हसन शाह ये वो जज थे जिन्होंने अपीलें खारिज कर दी और मौत की सजाओं को बरकरार रखा। जुल्फकार अली भुट्टो को जेल में शदीद अज़ियतें बर्दाश्त करने के बाद 4 अप्रैल 1979 को सेंट्रल जेल रावलपिंडी में फांसी दी गई। वहीं रात को उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और उन्हें गड़ी खुदा बख्श ने उनके खानदानी मज़ार में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जुल्फकार अली भुट्टो के मुकदमे का दोबारा आगाज हुआ 2 अप्रैल 2011 को। जुल्फकार अली भुट्टो के मुकदमे और फांसी के तकरीबन 32 साल बाद पीपल्स पार्टी जो उस वक्त की हुक्मरान जमात थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो के मुकदमे को दोबारा खोलने के लिए दरखास्त दायर की। उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की काबीना ने मुकदमे को दोबारा खोलने के लिए कानूनी टीम तश्कील दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने आइन के आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस पर रजामंदी जाहिर की। आइन का आर्टिकल 186 सुप्रीम कोर्ट के मशावरती दायरा कार को मुतय्यन करता है और ये कहता है कि अगर किसी भी वक्त सदर पाकिस्तान ये समझता है कि कानून के किसी ऐसे सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की राय हासिल करना ज़रूरी है जिसे वो अवामी अहमियत का हामिल समझता है तो वो सवाल को गौर के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल 2011 को दरख्वास्त की समाअत की। पाकिस्तान के वजीर कानून बाबर अवान ने भुट्टो के केस की मशावरत की। उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी ने पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत के इस इक़दाम को
सराहते हुए उसे अपने नोटिंग रिमार्क्स में तारीखी करार दिया। एक अहम पेशरफ्त में सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी की कानूनी हैसियत से मुतालिक फैसले को लार्जर बेंच को मुंतकिल कर दिया। 6 मार्च 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईजा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस के जवाब में ये राय दी कि भुट्टो को पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 4 और 9 के मुताबिक मुनसिफाना ट्रायल फराहम नहीं किया गया। Proceedings of the trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process enshrined in Articles 4 and 9 of the Constitution. 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने सदर को राय दी कि उनके मुत्तफिका ख्याल में भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल और सुप्रीम कोर्ट में अपील ने आइन में दर्ज मुनसिफाना ट्रायल और मुनासिब अमल के बुनियादी हक के तकाज़ों को पूरा नहीं किया। 4 दहाइयों के बाद मशावरती दायरा कार में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि भुट्टो के मुकदमे में आइनी और कानूनी खामियां थीं। भुट्टो का मुनसिफाना ट्रायल नहीं हुआ था। This question we approach and answer considering whether the trial court and the appellate court attended to and dealt with the requirements of due process and fair trial. The reference filed by the President of Pakistan has provided us an opportunity to reflect upon the proceedings of the trial, conviction and death sentence of Mr. Bhutto under the regime of the military dictator General Zia-ul Haq. Interest reflects the widespread desire of the people of Pakistan to seek the opinion of this court on whether Mr. Bhutto was afforded a fair trial and due process for his trial for the murder of Mr. Mohammad Ahmad Khan Kasuri. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें खुद एहतसाबी के जज्बे के साथ अपनी माजी की गलतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए और सही सिमत में उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि हम अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम नहीं कर लेते। Integrity and fidelity to the law. We cannot correct ourselves and progress in the right direction until we acknowledge our past mistakes. कई दिहाइयों तक इस केस को अदालती कत्ल कहा जाता रहेगा। बिलाखिर आला तरीन अदालत और सजाए मौत को बरकरार रखने के जिम्मेदार इदारे ने अब मौसर तरीके से कबूल कर लिया कि ये एक संगीन गलती थी। Basically, our opinion is that the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial, and it was not in accordance with the Constitution requirement of due process. हमारी इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए केस के साथ।